A morning devotion from Oil and Wine.
हमारे जितना भी उत्साह और शक्ति जो है वो बिल्कुल, और हम थक जाते हैं, और एक तनाव भी होता है किसी के अंदर कि कैसा हम वापस जाएं। Is there anything left in you, Brother Rajan? When that is a reality on the one side, एक तरफ वास्तविकता यही है, we also see on the other side, दूसरी तरफ क्या देखते हैं, on the fourth day, you are only getting stimulated and charged. और चौथा दिन ही जो है आप एकदम उत्साह जाता है, आप एकदम और भी उभर जाते हैं। Yes. Now, brother, please don't tell us that you are energized and strengthened on the fourth day. We want to go home. Now, that is the reality. On one side, we feel tired and we have no stamina, we have no strength. But in the realm of the Spirit, Amen. we will find something different. और ये वास्तविकता है। एक तरफ तो Now, how many of you really identify with what I'm saying? आप में से कितने लोग A few hands. एक तरफ तो शारीरिक रूप में से आज का दिन बहुत लोग थक जाते हैं, Yes. परंतु दूसरे तरफ आत्मा में बहुत हम उत्साहित होते आ रहे हैं। Yes. And therefore, we all have set our hearts to reach back our homes at the earliest. Therefore, we all have set our hearts to go back home at the earliest. और इस कारण हमारा हृदय शीघ्र ही हमारे घर वापस लौटने के ऊपर लगा हुआ है। Some of us have kept our briefcases all ready, take it and go. और कई लोग अपने सामान सारे पैक कर और तैयार कर रखे So, शीघ्र ही दौड़ने के। I was talking to some brothers this morning to know what their hearts are. और I told them, और आज कुछ भाइयों से मैं बात किया कि उनका हृदय में, we all are tired and we all have to get back home the earliest. और क्योंकि हम सब थका हुआ है, हम शीघ्र ही अपने मंजिल पहुंचना है। We have a good worship, we have the table of the Lord and we will disperse. और अच्छा आराधना होगा, उसके बाद में परमेश्वर का प्रभु का वाचा की मोहि भी होगा, उसके बाद में हम जाएं। So he said, no brother, we can have a little bit of word. और तब भाई लोग ने बोला, ब्रदर आज का तो और कुछ रोटी दीजिए, हमें रोटी हमको चाहिए। He said we can have a little bit of word. I don't amplify. थोड़ा रोटी भी दीजिए। We will have little bit of the word of God. और थोड़ा रोटी भी हो सकता है यात्रा के लिए आवश्यक लंच हो, तो थोड़ा रोटी भी दीजिए। And someone else said, और कुछ लोग ने कहा, we can have a short worship and a long word. Short worship and long word. I mean, long time for the word of God. किसी ने कहा आराधना थोड़ा समय हो, परंतु परमेश्वर के वचन के लिए हम अधिक समय लें। So I don't know what to do. You want a short? मुझे मालूम है क्या करना। But I want to tell you that, God has a word to speak to us again. क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो हमसे बात करना। We do not want to be long this morning. आज प्रातः काल हम अधिक समय लेना नहीं चाहते। That is what our heart's desire is. वो हमारा हृदय की इच्छा नहीं है। And let us really concentrate and hear what God has to say to us. और हम ध्यानपूर्वक सुने परमेश्वर जो हमारे से क्या कहना चाहता है, उसको ध्यानपूर्वक सुने। And let us receive what He has for us for this season and this time. और इस ऋतु में, इस समय के लिए हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ रखा है, हम उसके हाथ से हम प्राप्त करें। So may God help us therefore. और इस कारण परमेश्वर में सहायता करें। That the little time we spend, we will remain with our whole heart given to the Lord in every way. थोड़ा समय तो हमारा संपूर्ण हृदय जो है प्रभु के लिए सुपुर्द करते हम रहें। प्रभु के लिए अपना हृदय खोल कर रखें। Saints of God, I somehow feel that we are living in an exciting and at the same time in dangerous times. मैं ऐसा एहसास करता हूं परमेश्वर के पवित्र लोगों, Yes. हम सब के सब एक बड़ा अचंभित समय पर भी
और उसी अवसर पर एक खतरा के समय पर भी हम रहते हैं। The day in which we live is both exciting at the same time dangerous. जिस समय में मैं और आप आज जीवित रहते हैं वो हमें बहुत उत्साहित करने वाले, हमको अचंभित करने वाला भी है। Yes. दूसरी तरफ एक खतरा का दिन भी है। This is something that I began to experience here. This is what I began to experience here. और ये यहाँ मैं यही अनुभव करना आरंभ Now किया। you may ask me, what is the excitement? और आप पूछेगा हमको उत्साह करने के लिए उमड़ने वाले एक बात क्या है? I was excited in my spirit by seeing what God is doing in several lives in this very place. और इस जगह पर परमेश्वर प्रभु ने और कितने लोगों को जीवन में कार्य करते हुए देख के मेरा हृदय उभर गया, बहुत उत्साहित पाया। My heart was excited about what God did this morning in the waters of baptism. और पानी की बपतिस्मा में परमेश्वर हमारे भीतर क्या काम किया उसको देखकर हमारा हृदय उभर My गया। spirit is excited by what God did here last night. और कल रात को परमेश्वर हमारे भीतर क्या कार्य किया उसको अनुभव करते हुए मेरा हृदय उभर गया, उमड़ गया। Yes. There is an excitement there. और इधर वो एक उभर है। These are exciting days because we see God's sovereign hand working and bringing forth something unto His own name and glory. प्रभु परमेश्वर ने अपने नाम के लिए, अपने महिमा के निमित्त और कुछ ऐसी बातें हमारे भीतर, अपने लोगों को भीतर इन दिनों में और देना आरंभ किया, काम करना आरंभ किया। It is exciting because God is bringing a corporate body of saints and aligning them to His will and purpose in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में प्रभु ने अपने लिए एक देख को तैयार करते हुए और उनको अपना इच्छा, अपना हृदय के साथ एक साथ होने के लिए उनको It तैयार is exciting because God is bringing forth a people into the fullness of His Son in these days. Amen. प्रभु ने अपने लोगों को अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पूरी ढील डोल तक या परिपूर्णता में ले आने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। It is exciting because God is bringing His divine government Amen. in the life and in the midst of a generation in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. ये बात भी हमको उभारता है क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को जीवन में ईश्वरीय शासन और ईश्वरी की राज्य की नियम और उनके अंदरूनी जीवन में ले आ रहा है। And therefore in my spirit I see an excitement. और इस कारण मेरी आत्मा में मैं उभरा जा रहा हूँ। I am excited in my inward man. और मेरे अंदरूनी मनुष्य में, भीतरी मनुष्य में मैं उभरा जा रहा हूँ। These are the days where God is doing exciting things in the life and in the midst of His own people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं निश्चय विश्वास करता हूँ, निश्चय विश्वास हो गया है इन दिनों में प्रभु परमेश्वर अपने भूखे और प्यासे लोगों को जीवन में अपना काम और एक नया काम, एक अपने लिए एक नया काम करना आरंभ कर। I also said that the days in which we live are also dangerous days. मैं ये भी कहा था जिन दिनों में मैं और आप रहते हैं खतरों का, हमारे लिए खतरे के दिन भी है। खतरे It is dangerous because the enemy is also at work. He is at large, as we heard yesterday. The restraint is almost lifted and he is moving in fierce anger against what God is doing in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, और वो शत्रु भी Yes. अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। Yes. क्योंकि जब प्रभु ने उसके ऊपर लगा हुआ रोक को हटा दिया तो Yes. वो बड़े क्रोध के साथ और उनके जीवनों को हमला करना चाहता है जिनके जीवनों में परमेश्वर अपने काम कर रहा है, अपने लिए अपने लोगों को तैयार कर रहा है, उन कामों को विरुद्ध बड़े क्रोध के साथ हमला करने के लिए और उनके तैयार थे रहता है। He moves with much or with all deceivableness in these last days. और इन दिनों में बड़े और चतुराई से और बड़े धोखे के भावना, धोखा करने का और भरमाने वाले उस अभिप्राय से, उस चित्त से वो भी कार्य बहुत शीघ्र ही कार्य करना। Even right in our midst there are those who are in the shadows of deception. और मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, हमारे भीतर भी कुछ लोग जो है इस धोखेपन की और छाया में बैठा हुआ अभी तक। If we are not very serious in our lives
I want to say a word of caution here that we may be, taken into the very trap of the evil one in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि इसके विषय पर हम गंभीर ना रहें, Yes. सतर्क ना रहें, तो शीघ्र ही जो है और शैतान हमको अहेर करके और शैतान के हाथ में पड़कर हमारा जीवन बहुत और बिल्कुल और विध्वंस के स्थान पर आ जाएगा। That we can be related to a body without a real inward flow and working in our inward man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस खतरे का एक बात भी मैं बताना चाहता हूं। हम एक सही मंडली में रहते हुए परंतु परमेश्वर के काम हमारे भीतरी मनुष्य में होने से अपने आप को अलग कर कभी रख सकता है। ये Enemy can even counterfeit that which God is doing in reality in some lives. जो कुछ लोगों के जीवन में जो प्रभु परमेश्वर ने जो वास्तविकता का काम कर रहा है, उसका आपके जीवन के अंदर नकली भी हो सकता है। नकली बात को भी आपके जीवन में आने का आपका जीवन का द्वार खोल कर रखा होगा। These are the days of imitations. क्योंकि आज का दिन जो है नकल करने का दिन है। These are the days that the enemy is making a lot of counterfeits. क्योंकि इन दिनों में शत्रु जो है अपना नकली का काम कर रहा है। And therefore we need to be very sensitive and given to the Lord wholeheartedly in this hour. और इस कारण हम बड़े संवेदनशील रहते हुए संपूर्ण हृदय से प्रभु हमारे जीवन की अंदरूनी भागों में कार्य करने के लिए Yes. हम अपने आप को दे देना। The enemy is also seeking to establish his government. और क्योंकि शत्रु भी हमारे जीवन के अंदर अपने शासन स्थापित करना चाहता है। Let us not take this lightly, saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों, इन बातों को अपने जीवन में हल्की ना समझें। I have seen this over the years. क्योंकि ये कई वर्षों से मैंने देख के आया How the enemy slowly sets in his government even in the life of believers. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये शत्रु अपना शासन और अच्छा विश्वासियों के जीवन में स्थापित कर दिया है, स्थापित कर चुका है। And how the enemy has driven them away from where God has brought them and placed them. और उसके बाद में वो शत्रु क्या करेगा, जहां परमेश्वर ने अपने असीम करुणा से और उन जीवनों को जहां रखा है, जिस उद्देश्य के लिए रखा है, उधर से हटा देगा शत्रु। Remember, the enemy does not work just externally. और इस बात को स्मरण रखिए, शत्रु केवल प्रकट रूप में ही काम नहीं करेगा, But he even works internally. और वो भी गुप्त रूप में और हमारे जीवन के गहराई में काम करने के लिए बड़े यत्न करेगा। Many times when we talk about Antichrist, we think about an individual or a person. और कभी कभी हम विरुद्ध मसीह का शब्द सुनते हुए हम समझते हैं Yes. तो एक ही व्यक्ति है, एक ही पुरुष कहकर हम समझते हैं। That is the way many interpret the word of God. क्योंकि बहुत लोग इस प्रकार परमेश्वर के वचन को अनुवाद करते हैं। But John the Apostle says the spirit of Antichrist. Spirit of Antichrist. Spirits of Antichrist. Spirit. और परंतु यूहन्ना प्रेरित ने अपना लेख में ये कहता है विरुद्ध मसीह की आत्मा, विरुद्ध मसीह की आत्मा। Yes. We need to be therefore careful. We need to know that which works in the place of Christ and against Christ is a spirit more than a man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के काम, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध के काम जो है, Yes. इस बात को हम पहचानना है, वो उस विरुद्ध मसीह की आत्मा का काम है। It's a spirit again here. और इधर भी एक आत्मा का काम है। And the spirit works it even internally in our lives. हमारे जीवन की अंदरूनी में ये विरुद्ध मसीह की आत्मा भी काम कर सकता Yes. है। So how careful we got to be in these days in which we are living. जिन दिनों में मैं और आप जीवित हैं, इन दिनों में हम कितना सावधानी से, सतर्कता से जागृत रहना है। Yes. The enemy cannot stop God from fulfilling his overall purpose and plan. परमेश्वर के प्रिय लोगों, The enemy cannot. शत्रु जो है परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा होने से रोक नहीं सकता। Amen. Amen. आमीन। The enemy cannot stop
the eternal God from fulfilling and performing what He has purposed in His Son, the Lord Jesus Christ. शत्रु जो है परमेश्वर जो अपना सनातन पुत्र मसीह यीशु में जो सनातन काल से योजना बनाया